Hello student, today I will discuss about the psychometric process, sensible heating, sensible cooling and humidification process. Also we have discussed about the sensible heat factor. There are the number of processes which are showing in the numbering form: sensible heating, sensible cooling, humidification, dehumidification, heating and humidification, cooling and humidification, cooling and humidification, heating and dehumidification. These are the number of processes in which the behavior of the moist air and the dry air also discussed in this process, and the expression which are calculated from the process are given in these slides, later slides. First of all, in a basic process in air conditioning of the dry air and the moist air, which is discussed here in the diagram, it is a origin point. If it is moving from right side, that is called a sensible heating. If it is moving from the left side, it is called a sensible cooling. तो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग क्या है? सेंसिबल हीटिंग का सेंसिबल का मतलब बताया था कि इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर या चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो हियर द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द डीवीटी and this temperature from left to right is increasing manner. So when the temperature is increasing from this side to this side, O to A, this is called a sensible heating. In this case, the specific humidity is remaining the constant. Specific humidity की जो वैल्यू रहती है वो constant रहती है, वो चेंज नहीं होती है. But if moving of the left hand side, it is called the cooling because of the temperature will remains the decreasing order. यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है विदाउट चेंजिंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, इसलिए इसका नाम है सेंसिबल कूलिंग. थर्ड इज द ह्यूमिडाइंग प्रोसेस ओसी दैट इज वर्टिकल मैनर विदाउट चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर बट इंक्रीजिंग ऑफ द मॉइस्चर इन द ड्राई एयर, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडाइंग प्रोसेस. इफ रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मॉइस्चर एयर, it is called the dehumidification. It is represented by the OD and this is called the dehumidying process. Fifth is the heating and humidifying. Heating and humidifying, it is represented the OE. यहाँ पे हेयर को गर्म भी किया जा रहा है और उसमें मॉइस्चर भी पार्टिकल शामिल किए जा रहे हैं. तो here the temperature, suppose that is the 15 degree, here the temperature is 25 degree centigrade. That is the heating is done due to the change of the temperature. And humidification, here the value of the omega 1 specific humidity and change of specific humidity is this place E. That is called the heating and humidification. Cooling and dehumidifying process OF, यहाँ पे कूलिंग भी होगी एयर की और डिह्यूमिडाइंग मॉइस्चर रिमूवल भी होगा, तो इसको बोलते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग. तो टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ द हियर द टेम्परेचर इज 15 और हियर द टेम्परेचर इज 10. तो दिस इज द कूलिंग प्रोसेस. एंड ऑल्सो हियर द मॉइस्चर इज W omega 1 and here the omega 2. So decreasing of the moisture removal from the air, that is called the dehumidifying process. So cooling and dehumidifying representing the process OF, and after the new process that is the cooling and humidifying, कि कूलिंग कर रहे हैं बट ह्यूमिडाइंग हो रही है साथ में, तो इसको हमने OG से रिप्रेजेंट किया है. OG प्रोसेस इज हियर. तो यहाँ पे कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. यदि यहाँ से आएंगे तो ये यहाँ पे टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है, तो कूलिंग हो जाएगी. बट ह्यूमिडाइंग हो रही है, यहाँ पे मॉइस्चर जो है एडिंग किया जा रहा है, तो उस कारण से इसका नाम पड़ गया कूलिंग एंड ह्यूमिडाइंग. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द OG. हीटिंग एंड ह्यूमिडाइंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस OH को. तो OH जो प्रोसेस है आपकी, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, आप टेम्परेचर देख रहे हैं, यदि यहाँ पे 10 डिग्री है और यहाँ पे 25 डिग्री है, तो 10 और 25 में 15 डिग्री का डिफरेंस है, ये हीटिंग करा रहा है. और यहाँ पे ह्यूमिडाइंग हो रही है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर. यहाँ पे आपका था ओमेगा 1 जो कि ज़्यादा था और यहाँ पे आके ओमेगा 2 जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो दैट इज़ द ह्यूमिडाइंग प्रोसेस. तो ये सारी प्रोसेस को 1 बाई 1 करके हम डिस्कशन करेंगे. तो ये जो प्रोसेस है इनको हमें देखना है और इस प्रोसेस में बिहेवियर देखना है मॉइस्ट एयर का, ड्राई एयर का किस तरीके से कैसा बिहेवियर रहता है. तो साइकोमेट्रिक चार्ट में इसको इस तरीके से लिखा भी जाता है. सेंसिबल हीटिंग इट इज़ द राइट, सेंसिबल कूलिंग इज लेफ्ट, ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिफाइड अपवर्ड, डिह्यूमिडिफिकेशन डाउनवर्ड, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज इंक्रीजिंग राइट हैंड साइड, एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज द लेफ्ट हैंड साइड. एंड हियर द एवोपरेटिव कूलिंग इज डन. एवोपरेटिव कूलिंग कर रहे हैं इधर पे ऊपर साइड पे, और यहाँ पे आपका
हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, हीटिंग भी हो रही है और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, तो ड्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट में शो की गई है अलग से। तो वन बाई वन करके प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सेंसिबल हीट प्रोसेस, हीटिंग और कूलिंग। तो हीटिंग में और कूलिंग में जो डिफरेंस है कि टेम्परेचर एक जगह बढ़ जाता है, दूसरे जगह पे टेम्परेचर कम हो जाता है। हीटिंग और कूलिंग ऑफ एयर विदाउट एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द मॉइस्चर टर्म इज कॉल्ड सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस वो कहलाती है जहाँ की मॉइस्चर को विदाउट ऐड किए हुए काम किया जाता है, उसे हम सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। हीटिंग कैन बी अचीव बाई पासिंग द एयर ओवर द हीटिंग कॉइल लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग कॉइल और स्टीम कॉइल। तो हीटिंग इफेक्ट यदि लेना है तो एयर को हमें रेजिस्टेंस हीटिंग कॉइल पे पास करना पड़ता है या स्टीम कॉइल में पास करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं हीटिंग। यदि कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग करने के लिए हमें एवोपरेटिव कूलिंग कॉइल में पास कराना पड़ता है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में रहती है, या जो ब्राइन कॉइल रहती है सेकेंडरी ब्राइन कॉइल, वहाँ पे यदि पास कराते हैं तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। हीटिंग कॉइल, सेंसिबल हीटिंग, एयर फ्लोज ओवर ए हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल के ऊपर यदि पास करेंगे तो टेम्परेचर विल बी राइज। सरफेस टेम्परेचर Ts हायर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। जो एयर का एटमॉस्फेरिक एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर से काफ़ी कम रहता है, या बोलना चाहिए सरफेस टेम्परेचर रहता है कॉइल का वो ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक एयर। हीटिंग में मीडियम फ्लोइंग थ्रू द कॉइल दैट इज द स्टीम हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। जो गैसेस फर्नेस से निकल जाती है उनको यहाँ पे पास कर दिया जाता है तो हीटिंग इफेक्ट मिल जाता है, या स्टीम जो कि यूज़ नहीं हो पा रही है टरबाइन में एक्सपांसन होने के बाद उस स्टीम को भी पास कर दिया जाता है यहाँ पे हीटिंग कॉइल में। मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द विंटर हीटिंग ऑफ द एयर दैट इज द हॉट वाटर और स्टीम कॉइल। ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, या तो डायरेक्ट फायर्ड फर्नेस गैस वाला किया जाता है, या तो फिन्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिप्स हीटर्स को अप्लाई किया जाता है। तीन में से कोई भी एक मेथड अप्लाई किया जाता है ताकि हमें हीटिंग इफेक्ट मिले, और हीटिंग इफेक्ट अपने को विंटर कंडीशन में चाहिए, कूलिंग इफेक्ट अपने को समर कंडीशन में चाहिए, और हीटिंग इफेक्ट अपने को विंटर कंडीशन में चाहिए। तो ये एक डायग्राम जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि जहाँ के टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया, बट सरफेस टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर देन द बोथ टेम्परेचर, ओके, बट विदाउट चेंजिंग ऑफ द मॉइस्चर रिमूवल दैट इज द ω1 इक्वल टू ω2। दिस इज द कंडीशंस जहाँ की हीटिंग और कूलिंग का अरेंजमेंट दिखाया गया है। हीटिंग के लिए यहाँ पे हीटिंग कॉइल और स्टीम पास की जा रही है, एयर इज सप्लाइंग फ्रॉम द दिस साइड इनलेट साइड, एयर इज आउट फ्रॉम द एग्जिट साइड आफ्टर द हीटिंग इफेक्ट टेकन। Similarly in the case of cooling, refrigerant is passing through the cooling coil and air is supplied from this side। तो जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कम टेम्परेचर यहाँ से मिलके एग्जिट साइड पे मिलेगा। तो कूलिंग इज शोइंग इन द डायग्राम इज द लेफ्ट हैंड साइड, हीटिंग इफेक्ट इज शोइंग इन द डायग्राम राइट हैंड साइड। तो DVT is increasing in the heating condition but DVT is decreasing in the cooling side without changing of the moisture। Sensible heating or cooling, a psychometric process that involves the increase or decrease in the temperature of air without changing its humidity ratio। humidity ratio यदि चेंज नहीं हो रहा है तो उसे सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग बोल रहे हैं। Passing moist air over a room space heater and of clean air over the heating coils, these are the conditions for the sensible heating। सेंसिबल हीट प्रोसेस, अब जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज़ दिखाई दे रही हैं, हीटिंग के लिए भी कूलिंग के लिए। यदि हीटिंग के लिए देखेंगे तो आपको फॉरवर्ड साइड मिलेगा, कूलिंग के लिए देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। If a building to be air conditioned receive or loses heat due to the transmission or other reason, it is supposed to have the sensible heat load। The enthalpy will increase when the heating effect is done, enthalpy will decrease when the cooling effect is done। The enthalpy increases from HA to HB from heating, and when the cooling effect is taken, enthalpy will decrease from HB to HA। So sensible heat process, that is the MA HB minus of HA, HB is more than the HA, and MA Cp Tb minus of Ta converted in the enthalpy, that is a Cp change of temperature, Ma Cpa Tb minus of Ta plus Ma omega Cpv Tb minus of Ta। तो यहाँ पे जो आप एयर देख रहे हैं मॉइस्ट एयर, तो एयर प्लस वाटर वेपर दोनों के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एंथैल्पी का जो सिस्टम रहता है वो एयर और मॉइस्चर दोनों के लिए रहता है। उसी के लिए हम बात कर रहे थे, जैसा कि हमने बताया था आपको
तो यहाँ पे 1.005 जो कि स्पेसिफिक हीट रहती है मॉइस्ट एयर की, CP भी 1.88 हम ऐसा मान के चल रहे हैं वाटर वेपर की जो स्पेसिफिक हीट रहती है 1.88 रहती है, ओमेगा TB माइनस ऑफ TA। दिस इज द फार्मूला फॉर द सेंसिबल हीट केस। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन स्टैंडर्ड एयर इज टेकन एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड एयर को जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, 50% RH होती है। द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड एयर इज द 1.2 kg per meter cube। द वैल्यू ऑफ CP इज टेकन 1.016 किलोजूल पर kg। तो यहाँ पे जो आपके पास मास ऑफ एयर है दैट इज द QB इंटू रो, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर आप निकाल सकते हैं इजली तरीके से। किस तरीके से हम सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस को शो करते हैं साइकोमेट्रिक में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। हीटिंग इज गोइंग इनटू द राइट साइड एंड कूलिंग इज गोइंग इनटू द लेफ्ट हैंड साइड विदाउट चेंजिंग ऑफ द मॉइस्चर। दैट इज कॉल्ड द हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस। Latent heat process, humidification and the dehumidifications. Upward is going the moisture increasing without changing of the dry bulb temperature, humidification. If the downward sign is considered without changing of the dry bulb temperature but decreasing of the moisture removal of the moisture from the moist air. That is the condition of the dehumidifications. In these conditions, the enthalpy, if the humidification of the process taking place, enthalpy will increase, and from the dehumidification process, if the dehumidification process is taking place, the moisture removal and without changing of the temperature, the enthalpy will decrease because of the enthalpy is here at the starting condition, and after the dehumidification, that is this condition. When the state of air is altered along T is equal to constant, temperature change नहीं हो रहा है, moisture in the form of vapor has to be transferred to change in humidity ratio of air, but humidity ratio जो है change हो रही है, उस केस में हम इस चीज़ को बात करते हैं। तो G is the humidifications or latent heat process, that is the MA omega C minus of omega B। if we done humidification process, यदि humidification process को करेंगे तो change of moisture जो रहेगा वो आपका ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा बी रहेगा। तो लेटेंट हीट ट्रांसफर एम ए एस सी माइनस ऑफ एस बी, सी इज मोर देन द बी पॉइंट। तो यहाँ पे वही चीज़ निकल के आएगी, मास ऑफ एयर इंटू ब्रैकेट ऑफ सी पी इंटू टी सी प्लस एच एफ जी ओमेगा सी माइनस ऑफ सी पी टी बी प्लस एच एफ जी ओमेगा बी। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप देख रहे हैं क्लियर, जो कि आपको मिल रहा है। एंथैल्पी जो रहेगी एयर की प्लस आपको जैसा हमने बताया था कि वाटर वेपर के लिए उसके लिए रहता है, ये सी पॉइंट के लिए हो गया, इसी तरह सिमिलरली आपका यहाँ पे बी पॉइंट के लिए हो गया। तो यहाँ पे जो सी पी टी सी आप जो देख रहे हैं और सी पी टी बी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, सी पी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर, टी सी इज़ द टेम्परेचर एट पॉइंट सी, टी बी इज़ द टेम्परेचर ऑफ एट पॉइंट बी। तो मास ऑफ एयर इनटू एंथैल्पी एट अ लेटेंट कंडीशन, इसको यदि हम मान के चलें कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इज डज नॉट चेंज बट एंथैल्पी, लेटेंट एंथैल्पी इज द शोइंग द मॉइस्चर चेंजेस, मॉइस्चर इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बट हियर द लेटेंट हीट ट्रांसफर वेयर द मॉइस्चर इज रिमूवल और एडिंग। In this case where the temperature is constant, तो ये CPTC और CPTB that will be cancelled, then the formula will be reduced in this form MA HFG omega C minus of omega B. It is represented by MA HFG is equal to G, capital letter G, and HFG MA omega C minus omega B is represented by the G, and enthalpy of atmospheric air, latent enthalpy, that is the 2500 consider standard value. If a building gains or lose moisture, it is supposed to have a latent heat. A gain of moisture will require the condensation of moisture, that is the dehumidification minus of hence cooling load. The loss of moisture, that is the minus of required evaporation of water, humidification minus of hence heating load. तो ये आपका हीटिंग लोड मिलेगा, यहाँ पे आपका कूलिंग लोड मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर यदि गेन करेगा तो उसे कूलिंग लोड के अंदर में मानेंगे और यदि लॉस होगा तो उसे हीटिंग लोड के रूप में हम देखेंगे।
एंथैल्पी को यहाँ पे लेटेंट एंथैल्पी को 2501 माना गया स्टैंडर्ड वैल्यू, या 2500 भी ले सकते हैं, और ये फार्मूलेट के फॉर्म में किया गया कन्वर्ट किलोवाट के रूप में। सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिबल हीट फैक्टर? दैट इज डिफाइंड बाय सेंसिबल हीट टू द सेंसिबल हीट प्लस द लेटेंट हीट। तो इनका जो रेशियो रहता है सेंसिबल हीट फैक्टर रहता है, तो रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट ट्रांसफर टू द टोटल हीट ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड अ सेंसिबल हीट फैक्टर। तो इक्वेशन जो रहेगी आपकी, जो आपकी पहले निकल के आई थी, यहाँ पे उसी इक्वेशन को चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंसिबल हीट फैक्टर है उस फॉर्म में निकल के आता है एच बी माइनस ऑफ एच ए, एच बी माइनस ऑफ एच ए प्लस एस सी माइनस ऑफ एच बी, एच बी माइनस ऑफ एच ए अपॉन एस सी माइनस ऑफ एच ए। तो एच बी माइनस ऑफ जो यहाँ पे एस सी रहेगी वो कंडीशंस, क्योंकि चूँकि एच बी और एच बी कैंसिल आएगा तो यहाँ पे एच सी माइनस ऑफ एच ए बचेगा। तो ये फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगी वैल्यूज़। तो जो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख रहे हैं ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, या एक गिवन वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं कि सपोज दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन द गिवन, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंथैल्पी को हमने यहाँ पे चेंज किया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रूप में और टेम्परेचर के रूप में, इस हिसाब से भी हम चेंज करेंगे तो ये आपका फार्मूला जनरेट होगा। बट आपको ये पता होना चाहिए सेंसिबल हीट फैक्टर होता क्या है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर दैट इज़ अ सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। पॉइंट बी डिवाइड एस सी माइनस ऑफ एच ए जो आप देख रहे हैं, तो यही चीज़ आपको मिलेगी, दैट इज़ अ सेंसिबल हीट जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट की केस में टेम्परेचर चेंज होता है, लेटेंट हीट की केस में आपका मॉइस्चर चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे इक्वेशंस में, दैट इज़ द एच बी माइनस ऑफ एच ए, एच बी माइनस ऑफ एच ए ये आपकी हो गई सेंसिबल हीट हो गई, लेटेंट हीट आपकी एस सी माइनस ऑफ एच बी। तो एस सी माइनस ऑफ एच बी दैट इज़ द लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट टोटल हीट, तो ये आपका उनके सेंसिबल हीट फैक्टर। उसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो दिस इज़ द लाइन, ओरिएंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मेक्स दिस लाइन कि इफ़ द मूविंग अपवर्ड साइड दैट इज कॉल्ड द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, बट when the moving from C to A side that is called a cooling and dehumidification process. This is also shown here. Sensible heat along the AB, latent heat along the BC. Sensible heat यहाँ पे मिलेगी आपको, latent heat आपको यहाँ पे मिलेगी। The process line AC is called a sensible heat factor. तो जो AC है ये sensible heat factor रहेगी, ये आपकी heating के लिए हो सकती है और cooling की भी हो सकती है। तो sensible heat factor line और process और condition line, तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर आपका हो जाएगा इधर पे जो आप देख रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ सेंसिबल हीट फैक्टर। तो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, एंड द चेंज ऑफ मॉइस्चर दैट इज फ्रॉम द ओमेगा ए टू ओमेगा सी। हियर द चेंज डज नॉट चेंज ऑफ द मॉइस्चर, बट हियर द चेंज ऑफ मॉइस्चर इज ऑकर, बट डज नॉट चेंज ऑफ द टेम्परेचर। हियर द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, हियर द मॉइस्चर इज इंक्रीजेस। Sensible heat factor that is a unity, no latent heat transfer. Sensible heat line is a horizontal in psychometric chart. Zero sensible heat line is the vertical on the psychometric chart. तो यदि यह यूनिटी वैल्यू है सेंसिबल हीट फैक्टर की, तो इसका मतलब यूनिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मॉइस्चर चेंज नहीं हो रहा। जीरो का मतलब है कि वहाँ पे मॉइस्चर चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट आएगा तो जीरो सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन मिलेगी, और यदि मॉइस्चर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हॉरिजेंटल फॉर्म में मिलेगी। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, नो सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट फैक्टर का जो वैल्यू है 0.75 से लेकर 0.8 तक कॉमन एयर कंडीशनिंग प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं ली जाती हैं। ये आपकी बेस्ट मेथड है सेंसिबल हीट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड फार्मूला जनरेट किया गया है 0.0204 इन ब्रैकेट ऑफ TC माइनस ऑफ TADP, जहाँ पे TC जो है दैट इज़ द WC एट द कंडीशन एट C। पॉइंट जहाँ पे भी आपका रीच करेगा
वहाँ पे आपकी जो ओमेगा सी की वैल्यू रहेगी उस पॉइंट पे टी सी मिलेगा। टी ए डी पी दैट इज़ द ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग में मिलेगा जहाँ पे कि ये मीट करेगा पॉइंट। एंड दैट इज़ द टेम्परेचर एट पॉइंट एस वेयर द सेंसिबल हीट लाइन सी ए कट द सैचुरेशन कर्व व्हेन एक्सटेंडेड अपॉन 0.0204 TC minus of TADP upon 0.0204 in bracket of TC minus of TADP plus 50 into bracket of WC minus of WADP. This is the standard formula which can be used for calculation of values. Psychometric process in air conditioning equipment, 8 basic parametric process together cannot be achieved in practice. जितनी भी process आपने देखी थी कि सेंसिबल हीटिंग है, सेंसिबल कूलिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, ड्यूमिडिफिकेशन है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है, कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन है, हीटिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन है, कूलिंग एंड द ह्यूमिडिफिकेशन है, ये सारी प्रोसेस को एक साथ हम नहीं यूज़ कर सकते किसी भी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर यूज फॉर द दिस पर्पस। हर तरह की इक्विपमेंट के लिए हर तरह की प्रोसेस अलग अलग यूज़ की जाती है। बाईपास फैक्टर इज़ अ वाइटल पैरामीटर सिग्निफिकेंटली द परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। बाईपास फैक्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी एयर जो है बाईपास करके यूज़ की गई है, हीटिंग कॉइल में डाली गई है, ये हमें देखना पड़ता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे स्लॉट में। बट बिफोर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ये हमने आपसे बात की थी कि जहाँ की एयर को ठंडा भी कर रहे हैं और मॉइस्चर भी रिमूवर कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम देते हैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। जहाँ की टेम्परेचर को कम किया जा रहा है और मॉइस्चर को कम किया जा रहा है, वहाँ पे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होती है। प्रोसेस यूज इन समर एयर कंडीशनिंग, ये समर एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप देखते हैं गर्मी में चिपचिपापन लगता है, उसको दूर करने के लिए कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कूलिंग कॉइल है जिसमें कि एयर को पास किया जाता है तो एयर कूल होती है। इट इज़ प्रोसेस शोइंग हियर, दिस इज़ द प्रोसेस 1 to 2। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि आपकी कूलिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। द एंथैल्पी एट पॉइंट ऑफ H1 दिस इज हियर, आफ्टर द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंथैल्पी ऑफ H2 इज हियर। ये हॉरिजेंटल लाइन जो दिखाई गई है ये विदाउट चेंजिंग ऑफ द मॉइस्चर है। 1 to 3 जो देख रहे हैं यहाँ भी एंथैल्पी आपकी रिड्यूस होती है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आपकी दिखाई जा रही है 4 to 2 दिखाई जा रही है, क्योंकि 3 to 4 जब आप उतरेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी एंथैल्पी की कम हो जाएगी, बट इधर पे भी राइट साइड पे आएंगे तो एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन दिस डायग्राम द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इज टर्म इज द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि एयर में से यदि मॉइस्चर या वाटर वेपर पार्टिकल को निकाल दिया जाए तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल इफ द एयर इज कूल्ड बिलो, यदि कम टेम्परेचर पे की जाएगी तो वो ह्यूमिडिफिकेशन आसानी से हो सकता है। द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द कॉइल सरफेस टेम्परेचर। तो कॉइल सरफेस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द प्रोसेस, ओके, दिस इज़ द प्रोसेस। तो 1 to 2 दिस इज़ द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ड्रॉप and the dehumidification process occurs. The process of cooling and dehumidification is shown in figure. Temperature T1 is the temperature of air entering the coil, T2 is the coil surface temperature, T4 is the dew point temperature of air. So under the ideal condition, the air condition coming out of coil is will be 2. No cooling coil is 100% efficient. So the condition of the air coming out of the coil will be represented by the point T. तो जो कूलिंग कॉइल से एयर की जो कंडीशन निकल के आएगी वो 3 पॉइंट पर रहेगी, जबकि कॉइल सरफेस टेम्परेचर जो है 2 पॉइंट पे है, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 4 पॉइंट पे। द बाईपास फैक्टर इन दिस केस इज गिवन बाई, दैट इज B इज इक्वल टू लोएस्ट हीट ट्रांसफर अपॉन द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर। तो लोएस्ट हीट ट्रांसफर दैट इज द S3 माइनस ऑफ S2 जो आप देख रहे हैं, जो निकल के जा रही है एयर एंथैल्पी जो निकल के आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे आपका हाईएस्ट एंथैल्पी का H1 माइनस ऑफ H2। तो ओमेगा 3 माइनस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन इसको यदि
मॉइस्चर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, एंथैल्पी फॉर्म लिखना तो इस तरह लिख सकते हैं, और यदि टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो कॉयल सरफेस टेम्परेचर कहलाता है वो आपका ADP भी कहलाता है, ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो TD3 माइनस ऑफ ADP अपॉन TD1 माइनस ऑफ ADP। तो इस तरीके से आप बाईपास फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। This is the total heat removed from the air is given by, that is the H1 minus of H3 इक्वल टू H1 माइनस ऑफ H5। यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि यहाँ से ऊपर से इधर की तरफ जाना है तो ऐसे जा सकते हैं और फिर ऐसे जा सकते हैं। तो H1 माइनस ऑफ H5 दैट इज़ द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एंड H5 माइनस ऑफ H3 दैट इज़ द कूलिंग प्रोसेस। तो H5 माइनस ऑफ H3 दैट इज़ द सेंसिबल कूलिंग एंड H1 माइनस ऑफ H5 दैट इज़ द ह्यूमिडिफिकेशन। तो Q1 प्लस QL प्लस QS दैट इज़ द total heat removed, H1 minus of H5 that is the latent heat removed, H5 minus of H3 is the sensible heat removed. This is the discussed earlier also. This is a diagram. The cooling coil capacity in terms of refrigeration is given by capacity in tons, that is the H1 minus of H3 into MA upon 3.5, where MA is the mass of air in kg per second passing over the coil. The sensible heat ratio for few applications are recommended as residence or private office 0.9, restaurant or the busy office 0.8, auditorium of full capacity 0.7, ball dancing room at full capacity 0.6. These are the values which are taken. Cooling and dehumidification process. Air may be cooled and dehumidified by placing the evaporator coil across the airflow. Airflow के रास्ते में evaporator coil को रख दिया जाता है। By circulating the chilled water को सर्कुलेट कर दिया जाता है in a tube placed across the airflow. By spraying the chilled water to the air in the form of the fine mist to expose a large surface area. या तीसरी जो कंडीशन रहती है, चिल्ड वाटर को स्प्रे फॉर्म में कर दिया था ताकि वो मिस्ट बन जाए और लार्ज सरफेस एरिया को एक्सपोज कर जाए, जिसके कारण से कि हम कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको डायग्राम में इधर पे दिखाई गई, स्कीमेटिक डायग्राम में, कि एयर इज पासिंग थ्रू इनलेट साइड, एयर इज कमिंग थ्रू आफ्टर द गेनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर एंड द डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज कमिंग ऑन द दिस साइड्स, and the evaporator coil is this sides. Expansion device, this is the refrigeration cycle. This is the opposite of the refrigeration cycle, in which the condenser is below that. Okay. This is the second method, by circulating chilled water in a tube across the airflow. Third is the by spraying chilled water to the air in the form of the fine mist. तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका सर्कुलेटिंग चिल्ड वाटर पास कर दिया जाता है, दूसरा मेथड है। पहले एवापोरेटर कॉइल लगा दी गई थी, अब दूसरे मेथड में चिल्ड वाटर लगा दी गई है। एयर वही एज इट इज़ आ रही है इनलेट कंडीशन से, एयर यहाँ से वापस जा रही है, बट एवापोरेटर साइड से जो निकल के जा रहा है वो चिल्ड वाटर निकल के जा रहा है, या बोलना चाहिए पासिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि हम ठंड कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। एंड हियर इट इज़ पासिंग थ्रू द स्प्रे सोअर और चिल्ड वाटर। स्प्रे के फॉर्म में हम चिल्ड वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर जो है ठंडी हो रही है और मॉइस्चर रिमूवल हो रहा है। दिस इज़ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, दिस इज़ द कंडीशंस विच आर अचीविंग फॉर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। थैंक यू। आज के लिए हमने आपको डिस्कस किया कि जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस थी, इसमें सेंसिबल हीटिंग किस तरीके से बिहेव कर रही है, या उसमें प्रॉपर्टीज़ जो थी मॉइस्ट एयर की वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी, सेंसिबल कूलिंग एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को हमने देखा कि किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इनके लिए नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, बाय चिलिंग द वाटर एंड बाय एवापोरेटिंग ऑफ द वाटर एंड बाय द स्प्रेइंग ऑफ द वाटर। So these are the three conditions. Already discuss about the sensible heat factor, in which the discuss about the properties of the moisture and the dry air. So later slide we will discuss about the another process, psychrometric process will be discussed. Thank you.